हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत लोगों का स्नैप ख़त्म हो गया है और नेक्स्ट वाला स्नैप कब है आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट फर्स्ट इज़ ओवर। एनमैट बहुत लोगों का चल रहा है एंड कैट को ऑब्वियसली रिस्पॉन्स शीट्स आउट है, सो यू नो वेयर यू फेयरली स्टैंड इन दिस गेम। एंड द नेक्स्ट बिग एग्ज़ाम is ZAT, and it's one of the most important exam because it also covers a lot of colleges. भले ही अच्छे कॉलेजेस थोड़े कम हैं बट स्टिल it covers a lot of colleges, so if you get a good percentile there you can be rest assured that you will end up in a good college. So this video will help you cover everything you need to know about ZAT. I have consulted my friend जो अभी XLRI में है जिसका 99 percentile था, and he has also given some tips which I will tell you along with a few basic tips that everyone gives. So if you have seen any other video, maybe this video would sound a bit redundant, but हो सकता है एक दो पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिल जाए and maybe that works for you. So look out for those points. The brief introduction about myself. My name is Hemant. I am currently a student at IIM Kozhikode, PGP batch 2025, and I secured 97.84 in CAT. I have a 2 years gap. I had EWS category, an average 887 profile, and a BCom graduation. So I think I've set the context. So let's go to the main content. So see how first ZAT is different from CAT. ये समझो। पहली बात, personally ZAT according to me is the toughest exam in this whole circle. And it's very lengthy as well. हम लोग को आदत नहीं है 3 घंटे बैठने की, बट ZAT इज़ हैविंग दैट 3 hours थिंग. सेकेंड, इट्स ओपन सेक्शन. तो सबसे बड़ा बात ये कि यार डिसीजन में बहुत टाइम लग जाता है. लोग ऐसे इस चीज़ को बैठा नहीं पाता. जैसे कैट में क्या होता है कि 40 मिनट आपको VRC ही करना है, यू नो दैट. बट इन ZAT यू कैन in the first 10 minutes do VRC, in the middle 10 minutes you can do whatever you want, and that becomes a challenge. Third is after you leave, I think 8 questions. For every other question that you leave, there's a -0.1. But remember, इसके वजह से ये नहीं है कि आप सारे questions attempt करो after leaving 8 questions, because if you get wrong, I think it's -0.2. So it's better to go for -0.1 than -0.2. However, -0.1 is very little. आप 10 क्वेश्चन छोड़ोगे तब 1 मार्क जाएगा. So that is usually not a problem. So if you are underconfident in any question, rather than marking it wrong, just think to leave it. Don't overstress it. Fourth, there's a new section that comes in, which is by the name decision making, and it's a fairly absurd section. Like, I don't mind if you attack me for this, but हाँ बहुत ही बेकार टाइप के आंसर्स होते हैं कभी कभी. You won't be able to make sense of what exactly is going on. Why is this answer the answer when the response sheet is out? We are like, क्या चल रहा है यार, ऐसा कैसा आंसर हो सकता है. But they usually don't even change the answers in decision making. So it's tough. Decision making is tough. Fifth, this time like पहले essay writing भी होता था, that they have removed, but there is GK. So इवन दो आई हैव हर्ड फ्रॉम XLRI का लोग कि 50 परसेंटाइल जिसका है GK में वो भी यहाँ है. बट इवन इफ़ यू नीड टू हैव 50 परसेंटाइल, यू नीड टू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ GK. सो इट ऑल्सो बिकम्स एन एडिशनल चैलेंज कि आपको GK भी याद रखना है. ठीक है, बट हाँ वो चलेगा. 20 क्वेश्चन करने हैं 10 मिनट में. इफ़ यू नो यू नो. आई थिंक देयर इज़ नो नेगेटिव इन GK, सो सारा करते हैं लोग जनरली. तो ये था बेसिक कि हाउ ZAT इज़ डिफरेंट फ्रॉम कैट. एंड ऑब्वियसली यू नो ZAT से आपको XLRI मिल जाएगा, XIMB, IMT गाज़ियाबाद, IRMA, GIM, GLIM, and there could be a few more good colleges, IMI Delhi, right? So ZAT is definitely an important exam. So we'll go section by section. First comes the VALR section. VALR section is like, see, सबसे बड़ा बात है कि ZAT में ना टाइम बहुत है, तो लोग यूजुअली सारा क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं. एंड VA इज़ यूजुअली ऑन द टफर साइड, मोर सो बिकॉज फर्स्ट ग्रामर आ जाता है वहाँ पे. सो यू कैन नॉट लीव आउट ग्रामर, यू विल हैव टू प्रैक्टिस दैट. फॉर समवन हु इज़ बिन प्रैक्टिसिंग फॉर स्नैप एंड NMAT, ईजी है आपके लिए बिकॉज यू आर डूइंग दैट.
बट लेट्स एज्यूम समवन लाइक मी जिसने सिर्फ कैट और जैट दिया था. सो फॉर कैट आई डिड नॉट हैव टू प्रैक्टिस एनी काइंड ऑफ ग्रामर, बट फॉर जैट आई हैड टू, एंड दैट बिकेम चैलेंजिंग क्योंकि 1 मंथ के अंदर मेरे को DM भी करना है, मेरे को ग्रामर भी सॉर्ट आउट करना है और कुछ नई चीज़ें भी करनी है, विच इज़ वेरी टफ. ठीक है. सेकेंड, द पैराग्राफ लेंथ इज़ यूजुअली स्मॉल, बट वी ऑल नो जब कम इंफॉर्मेशन रहता है इट्स यूजुअली टफर. सो बिकॉज इट्स अ बिट कॉम्प्लेक्स पैराग्राफ एंड स्मॉल एंड क्वेश्चंस काफ़ी ट्रिकी होते हैं. सो यू विल यूजुअली फाइंड योरसेल्फ स्टक बिटवीन 2 ऑप्शंस, and at that point I would say go for a guess rather than leaving, because usually people end up doing all the question, take an educated guess. ठीक है. So you can't leave grammar and you mostly have to do all the questions. LR उतना टफ नहीं. VALR में भी मतलब LR वो नहीं होता, लॉजिकल रीजनिंग टाइप नहीं होता, वो वर्बल का LR ही होता है. सो इट्स लाइक आपका ऑल पेन्स आर ब्लैक, ऑल ब्लैक आर ग्रे, सो क्या कंक्लूजन आ सकता है, वैसा क्वेश्चन भी आ सकता है. सो हाँ, अगर आपने स्नैप एंड मैट का अच्छे से तैयारी किया वो सब कवर हो जाएगा. वेयर डू यू प्रैक्टिस फ्रॉम? सी फर्स्ट जो मेरे दोस्त ने बोला मैं आपको बताता हूँ. यूजुअली इंस्टीट्यूट्स, नो इंस्टीट्यूट इज़ गुड फॉर अ ज़ैट मॉक. ठीक है. बिकॉज नो वन रियली प्रिपेयर्स फॉर इट कि भाई मैं डेडिकेटेड बना रहा हूँ. कैट के लिए सब बनाते हैं, ज़ैट के लिए कोई नहीं बनाता. एंड आई डोंट नो वाई. Because it's an equally important exam for people who had high hopes from CAT but could not make it unfortunately. So he told जो and I don't know if it's appropriate or not to say, but हमारे टाइम पे हमें टाइम वगैरह के जो है PDFs मिल जाते थे प्रीवियस ईयर मॉक्स के, वो सर्कुलेट होता है एंड यू कैन फाइंड इट इन टेलीग्राम ग्रुप्स. यू जस्ट हैव टू डू अ बिट ऑफ हार्ड वर्क. तो उसके जो VARC थे उसने बोला 2017 से 2020 के स्पेसिफिकली दे वर वेरी टफ एंड दैट विल प्रिपेयर यू फॉर VARC बिकॉज दोज वर वेरी टफ एंड देन यू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि क्या पीछे चल रहा है. नॉट टू मैंशन द फैक्ट दैट यू हैव टू सॉल्व ऑल द ओमेट्स पेपर ऑफ लास्ट 10 years एटलीस्ट. सो देखो व्हाट डू यू हैव टू बिल्ड. फर्स्ट यू हैव टू बिल्ड अ स्ट्रैटेजी फॉर योर सेल्फ कि आपको VARC करना कब है, पहले करना है बाद में करना है. Second is you have to practice grammar. You have to practice the new things that are coming up. There is a poem wala thing that comes in and poem is usually very tough. I left. मैं नहीं कर पाता था. And I did not even put my mind into it because the poem में the interpretation is very open. कि भाई कोई कुछ भी बोल रहे हो और आप कुछ भी इंटरप्रेट कर सकते हो. मेरे से इतना नहीं होता है. ठीक है. तो VRC में you have to decide when you want to do, what you want to do, how will you attempt all the questions, where from you will practice, and then make sense of things. So AIMCAT के अगर आपको PDF मिल गया good, and ZAT previous year mocks good enough. That will do the work for VRC. So before moving forward guys, I have launched my GDPR course. If you have scored decent in CAT, if you are expecting calls, or if you are very prepared for ZAT and you know कि calls आएंगे, then you should also start a bit of your preparation रोज़ 1-2 घंटे. And we have launched a course at fair price of 3,500 where you will get personalized mentorship and all other support. Feel free to click on the link, check out the offering, and if it suits your, I would say, if it fits your bill, then feel free to join us. I can assure you the success because your success is also our success for me to continue in the future. But I won't waste more time and let's go to the DM section, which is like the elephant in the room. तो DM section एक नया section है. Like I told in the starting, there are pretty absurd answers that we have seen in the past, and when you go and look out for different क्या बोलते हैं ना YouTube channels explaining those, so everyone has a different explanation to some extent, which also signifies the fact कि किसी को भी नहीं पता कि किस लिए हो रहा है यार ये. ठीक है. सो टेक दो सॉल्यूशंस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड ऑल्सो नो इंस्टीट्यूट प्रिपेयर्स गुड मॉक फॉर दिस क्या बोलते हैं DM. सो ऑल यू हैव टू डू इज़ गो एंड सॉल्व ऑल द PYQs. बट ऐसा नहीं डायरेक्ट जंप इन करो. Go and solve in a mock format. Now what happens is, I'll tell you the challenge I faced. I was taking Unacademica classes and the teacher that I referred to, they had like the training material they had for DM
all of it was mostly from previous year का Z, and he just changed the names and things. ठीक है, the educator changed the names and things and presented it, और वो उसी के वे में पढ़ा रहे थे. So once I attended the class and then I went to previous year mock, I was shocked. नहीं, previous year paper, I was shocked कि यार ये तो सेम है. सो दैट बिकम्स अ जजमेंट. अब क्लाउड हो गया ना मेरा जजमेंट, कि मैं उसमें सबकॉन्शियसली एक ऑप्शन मार्क कर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने क्लास में पढ़ के मेरे को पता है कि ये सही ऑप्शन है, बट आई डिड नॉट रियली पुट माई ब्रेन इन टू इट, राइट. अब क्लास में सही हुआ था कि नहीं पता नहीं, बट ये सबसे बड़ा बात है कि व्हेन यू आर डूइंग इट इन मॉक फॉर्मेट यू वांट टू टेस्ट योरसेल्फ, एंड having known the answers before is not the right way to go about it. I hope you understand. So my suggestion would be, before seeing the classes, take mocks every second day at least. 10 mocks तो देना ही देना, ताकि you build your stamina and you build your way of thinking. And after 10 mocks, if you don't have time left, then उसके पीछे के 4-5 साल के जितने बच्चे हैं उसके YouTube वीडियोस देख लो. That would be good enough. DM के लिए अगेन, नो वन प्रिपेयर्स मटेरियल, नो इंस्टीट्यूट हैज़ गुड रिलायबल मटेरियल. सो डोंट थिंक कि आप IMS का कर लोगे या इसका टाइम का कर लोगे, CL का कर लोगे तो यू विल बी सॉर्टेड. इनफैक्ट यू विल सी दे हैव वेरी वेरी बैड DM मटेरियल. There's one YouTube channel, however, I would like to recommend, which is Priyasha Das, if I'm remembering her correctly. I'll mention the link in the description. She has covered decision making quite well, and उनका way of explaining अच्छा था. Again, because she knows the answer, maybe she can jump to a conclusion by saying this. और आप सोचोगे कि यार ऐसे दिमाग कैसे चलेगा, बट शी हैज़ बीन इन XLRI. उन्होंने उन प्रोफेसर से बात की है जो उन सेक्शंस को बनाते हैं. सो शी मे बी एबल टू गिव यू एन इंसाइट दैट अ लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट बी एबल टू. तो प्लीज़ रेफर टू इट. एंड नाउ वी कम टू QA सेक्शन, विच इज़ this time going to be very surprising. I don't know कैसा देंगे. It's generally tough, at least I perceive it to be tougher than CAT, and the one single reason is क्योंकि उसमें ज्योमेट्री ज़्यादा आता है, and I had an absolute bad run with geometry. So because there's a lot of time, and for someone who has QA has as its strong suit, वो तो सारा अटेम्प्ट करता ही करता है, राइट. सो DM में आपको सारा अटेम्प्ट करना है irrespective of anything, because no one knows the right answer, just have the right judgment. Look at Priyasha Das video and she will give you a lot of tricks again so that you can solve it in a right way. I might not be the best person, मैं 90% आया था DM में. So it's about ethics, it's about moral judgment. Never go with no वाला टाइप का आंसर जिसमें exactly no था. डिप्लोमेटिक होना चाहिए. ये सब चीज़ वो समझा देंगे, ठीक है. I don't think in this video I should give it to you, and it should not come from me, it should come from a credible source, which is her. For QA, don't leave geometry. If you have it as your strong suit, complete all the questions. DIs are very straightforward, it's calculation intensive. However, what's happening this time is कि वो लोग scientific calculator allow कर रहे हैं, and that is a very surprising thing, because now the scope of solving things have become much wider. So I don't know how it will affect the difficulty of the paper. My prediction, I might be wrong, but I think it will increase the difficulty, कि क्योंकि उनको पता है कि कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर ला के सॉल्व कर रहा है, सो दे विल गिव सम ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन जो डायरेक्टली सॉल्व ना हो. तो वो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा. ऑल्सो फॉर दैट प्लीज़ क्या होता है ना, साइंटिफिक कैलकुलेटर चलाना सीख लो, ख़रीद लो अगर नहीं है. इट माइट कम हैंडी टू यू इन एनी वे. सो डोंट थिंक कि बिना साइंटिफिक कैलकुलेटर कि मैं कर लूँगा या कर लूँगी. देयर कुड बी अ रीज़न दैट दे हैव टोल्ड यू कैन नाउ ब्रिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर. सो प्लीज़ डोंट डिस्काउंट दैट. कंटिन्यूइंग कि एरिथमेटिक, एल्जेब्रा वो सब इंपॉर्टेंट है ही. थर्ड टफ लेवल का आता है, स्पेशली एल्जेब्रा. ज्योमेट्री यू विल सी मॉडर्न मैथ्स एज वेल अ बिट. तो quants is going to be a mix, and leaving anything in the syllabus might only affect your chances of making it good. So please, you have 24-25 days from now. Give in all. अब जो नहीं है एटलीस्ट बेसिक्स करके जाओ, सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग. और अगर लो हैंगिंग फ्रूट आ गया, कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो ईजी है, यू इंस्टेंटली डू इट, बिकॉज यू विल रिग्रेट. एंड एवरी मार्क मैटर. इवन 0.1 mark will matter at
एट द हाईएस्ट लेवल, एंड वो कन्वर्जन के बीच में अगर आपका डिफरेंस ले आया देन इट्स गोइंग टू बी लाइक वेरी रिग्रेटफुल फॉर यू. एंड फाइनली वी आर कमिंग टू द जीके सेक्शन. जीके सेक्शन के लिए बस एक चीज़ करो, आईएमएस का जो जीके वाला है सारे उसके अब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 पेजों का रोज़ पढ़ो, 10 मिनट रोज़ पढ़ो एंड याद कर लो. यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स. मेरे को याद है माई कैट पे मेरा ऑल इंडिया हाईएस्ट आया था जीके में, ठीक है. आई गॉट 8 मार्क्स एंड एट दैट टाइम 8 मार्क्स ही हाईएस्ट था जीके सेक्शन में, बिकॉज आई स्टडी पूरा माई कैट मैं वो IMS का, एंड थिंग्स वर मैचिंग. इन दैट ऑल्सो आई थिंक आई गॉट 75 और 80% है, सो इट वॉज फेयर इनफ, ठीक है. दैट इज़ गुड इनफ. इतना कर लो. रोज़ मॉक देने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ गो गिव इनफ मॉक्स टू बिल्ड द स्टैमिना, बिकॉज 3 घंटा हम लोग का बैठने का हिम्मत अभी नहीं है. मैं जब बैठा था 3 घंटे मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी. उस दिन मेरा बर्थडे था, मेरे को याद है, बट भाई मैं एकदम दिमाग फट गया कि भाई क्या कर रहे हैं ये लोग. 3 घंटे 3.5 घंटे का पेपर क्यों है, ठीक है. सो इफ़ दैट इज़ अ पेपर दैट will determine something for you in your career and you are looking to join XLRI, then being sane for those 3 hours and giving your best is very important, for which you need practice because CAT के समय तो वो था नहीं. बाकी कुछ सिलेबस छोड़ो मत, जो नए नए चीज़ें उसको करो. बी होपफुल. आई नो इट्स गोइंग टू बी टफ फॉर द नेक्स्ट 24 days और अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं बीच में, बट डोंट लूज ट्रैक ऑफ टाइम, डोंट लूज योर ट्रैक ऑफ प्रिपरेशन. इस टाइम पे अगर जुड़े रहोगे तो आगे जाके उसका फल मिलेगा. इस टाइम पे अगर फोल्डर कर जाओगे तो मे बी आगे जाके रिग्रेट मिलेगा. यू हैव टू चूज़ विच एवर पाथ यू वॉन्ट टू टेक. सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड इन दैट वीडियो. If you have any doubt, feel free to put it in the comments. I'll ask my friend and give you the reply. Check out प्रियाशा दास का चैनल. 3 साल पहले वीडियो अपलोड किया था, फिर भी अभी भी रेलेवेंट है, बहुत अच्छा है. एंड इफ़ यू हैव एनी अदर रिसोर्सेज जो आपको लगता है सही रहेगा, फील फ्री टू पुट इन द कमेंट्स. हाँ मैं बोलना भूल गया, क्वांट्स में अगेन उसने बोला था टाइम का, उससे प्रैक्टिस करो बिकॉज क्वांट्स इज़ ऑन द टफर साइड. सो एम कैट का 2017 से 2020 का कैट मॉक्स टाइम का फॉर VRC एंड क्वांट्स, इफ़ यू सॉल्व एज माई फ्रेंड सेड इट वुड बी बेटर. एंड ओवरऑल जैट के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को एज अ मॉक देना ही है. यू कांट डिस्काउंट दैट फैक्ट बिकॉज दोज आर द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ हाउ जैट कैन बी विच इज़ अवेलेबल टू यू. इफ़ यू टेक वन जैट पेपर पिछले साल का एंड देन यू टेक किसी भी एक इंस्टीट्यूट का मॉक, जैट मॉक, you will realize that there's a very very big difference in the quality and it does not even closely resembles what you are going to face in the exam. So please don't skip that. I hope this video was helpful to you. My aim was not to make it much longer, but थोड़ा सा हो गया. So thank you for bearing me till the end. I'll keep coming up with videos and together we'll make your MBA journey much better. Thank you so much once again and all the best. See you in the next video. Till then, bye bye.